to deliver the first over of the inning. As per the SOPs in the pandemic, umpires taking care of their own safety, so that's why the cap is been given to the player by the bowler. And this is the must-need situation. The SOPs are maintained. So here we go. Rohit with the ball in his hand. And even the strike has been changed as Gopu comes on the striking end. And first delivery, Gopu cuts the ball. There's a deep point in act. Gathers the ball quite comfortably. And a single is on. Gopu opens the account for himself as well as for his side. And a good start for the young generation. The first delivery has been played towards the point in form of a cut shot. A lovely line maintained by Rohit. Savio swings the bat very hard. No connection. Allows the ball to travel to the keeper. Big guy keeping the stumps. Yash. Rohit with a very short run up. Right arm over the stumps. Another good pitch delivery. Ball bounce little bit than the previous delivery, making little confusions in the mind of the batsman, and consecutive 2 dot balls bowled by Rohit. There is a definite inside edge. Ball travels to the square leg region. A single has been taken, and that brings Gopu on the striking end. Low full toss, even no is the signal from the umpire, and that is for overstepping. Undoubtedly, the right arm has been raised to signal that it is a no ball, and even a free hit will be offered for Savio. Let's see whether Savio can get some form and do a better correction to send the ball out of the park. Meanwhile, Rohit looking very confident, mixing up the delivery, sometimes fuller, sometimes short of length, and even changing pace. Oh my dear, what a correction, and the free hit has been connected. Gift has been offered and the missile has been launched out of the ground. That is a biggie over the covers. With that, 6 score moves to 10. What a lovely start, and what a way to utilize the free gift that has been offered by Rohit. Savio on the striking end with a big 6. Change in pace again plays towards the same region but along the carpet. The thick grass on the surface makes the ball to halt right in the middle. And meanwhile, a single to end the over. After completion of 1, score is 11 without any loss of wicket. And meanwhile, we have got the DJ in the tent. So DJ, let's play some music. Ashlesh, the DJ, I think is taking rest. Meanwhile, let's go with the second over. Shrikar to deliver, 61 number on the back. Savio on the striking end, S to S. First ball, short ball outside the off stump. Savio wanted to cut the ball over the point area, no connection whatsoever. Allows the ball to travel to the covers. Another single score moves to 12. Gopu on the striking end. So far, Gopu is a little silent. Let's see whether he can join hands with Savio. Full toss delivery. There's a proper connection. Ball has been stopped at the fine leg boundary, but as the ball was pitched way above the waist height, it has been declared as a no ball. That no ball adds 2 runs to the total. Score moves to 14. And I think
that is going to be a concern as the two drops have been dropped onto the wicket before the batsman. But bowler survives. Maybe in the reach of the batsman. Another no ball. And a fumble. 2 runs is the call, and definitely Gopu and Savio takes the maximum advantage. No plus 2 runs, a total 3 runs into the account. With this extra 3, score moves to 17. And Savio on the striking. Let's see whether Savio can take maximum advantage of this free hit. Meanwhile, way outside the off stump, stretch off both the arms right at the shoulder height, indicating this is a wide. Extra takes the total to 18, even a free hit continues. Another connection along the carpet. It was a free hit, but could not take maximum advantage. Only a free hit has been sent out of the boundary rope. 2 free hits have been wasted by the batting side. And with the single, score moves to 19. Again, a good pitch delivery right into the zone, slightly outside the off stump. Gopu wanted to cut the ball, but the bounce that mattered. Ball kept a little low and travels to the keeper. Shikhar delivers a dot ball. Short pitch delivery. Gopu strikes, and what a hit! The 6 has come after a very, very long time, but it is the right time for the team. Good strike from the bat of Gopu. Now Gopu finally joins the party with Savio taking the total to 25. Second over in progress. Another low full toss, and the result will be similar. Scott kneels down onto his knees, and a water hit. Ball travels out of the square leg. With that sixer, after the completion of 2, score moves to 31. 31 on the board. And now the captain of the team will be bowling the 3rd over. Let's see what Gopal can do for his team, as the first over was decent. Only 10 runs have been given, and now 21 runs out of the second over. Another low full toss. Result will be the same. The big guy strikes, and no need to look at the ball. Ball travels out of the boundary towards the square leg. The fielders from the boundary rope looking at the ball. And with that, a big score moves to 37. Not a good start for captain of fielding side. Another full toss, not a proper connection. Ball takes the leading edge, travels towards the fine leg area for a single. That brings Gopu on the striking end. So far, a good healthy competition going out between 2 batsmen, as both the batsmen have hit 2 sixes each. Let's see who is going to score maximum 6s. Meanwhile, Gopal delivering the next delivery. Gopu wanted to pull the ball, but no proper connection. Another single, taking the total to 39. 4th over in progress. And now 3rd over in progress. In fact, Savio on the striking end. Savio again plays along the carpet. Another single to bring Gopu on the striking end. With the single, score moves to 40. Young generation is the team formed of young guys. Let's see what they can do. Short pitch delivery, and Gopu connects. Ball disappears out of the ground. Another 6 taking the total to 46. And now in this race, Gopu leading by 1 6er. Last delivery of the 3rd inning. Let's see what is going to happen as the ball has disappeared
The old ball to be made available for the bowler. So team members are doing the much required arrangements as the match will be on. Last ball of the third. Meanwhile, the ball has been found. And let's continue. Last delivery of Gopal. Gopu on the striking end. Full toss. Wait for umpire signal. Meanwhile, chance of a run out. And I don't think that was needed at this juncture. Full toss delivery slightly outside the off stump but inside the guideline. And that's the end of the third over. So after completion of score is 46 for the loss of first wicket. So new man in is Bhupendra, nickname Bhupi, will be at the non-strikers end. Siddhant to deliver the final over of the inning. Short pitch delivery. Gopu wanted to cut the ball. Stretch of arms by the umpire saying this is an illegal delivery. So wide is the signal with his extra score moves to 47. Siddhant looks to be in a hurry. 6 legal deliveries are yet to be bowled in this final over. Good delivery after that extra, straight onto the mark, right into the zone. Siddhant starts with a dot ball. 5 more deliveries to come. Let's see what Gopi can do, or whether Siddhant delivers up to the mark. Short pitch delivery. There was a chance for Gopi to heave the ball over the square leg, but could not connect it properly, resulting in a dot ball. Siddhant gaining confidence as 2 dot balls have been delivered so far in this penultimate over. Another short ball offering a free gift, and the troll has been taken. Ball has been hit slightly square of the wicket, and that sixer taking the toll to 53. 53 onto the board. 3 legal deliveries have been bowled. Requesting the players to kindly take your positions. Let's not delay with the match. A word of advice from the senior partner. Let's see what is going to happen. 3 legal deliveries remaining in this over. Towards the leg stump, well left, but as per the new rules, the initial position of the batsman counts. If you shuffle, still the original position counts. That's why this delivery has been called as a legal delivery. 2 more deliveries to come. 53 on the board. Another short pitch. Ball has been pulled away from the fielder, but what a lovely fielding. Last delivery of the inning, and Bhupendra on the striking end. Let's see what Bhupi can do, whether he does the justice as he has sent at the number 3 position. Teammates expecting a big 6 from Bhupi. And Bhupi connects. Oh my dear, he is playing after almost 2 years, I believe. I have not seen him playing for a quite longer time. But the form continues, and the swing of the bat is similar as the ball connects, travels out of the square leg boundary. Bhupi finishes off in a style in the first innings. That sixer takes the total to 60, and 61 is the target for new generation. Meanwhile, I would like to take a little break
and would like to invite Krishna Devji. Please come for your wonderful commentary in the second innings. नमस्कार. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्न कृमेदेवे सर्व कार्य सर्वदा. गणपतीचं नाव घेतो. स्पर्धेला सुरुवात होते. मैदानावर आजचा तिसरा दिवस. आमच्यासोबत आमचा जवळचा खास मित्र शौर्य आमच्यासोबत 12 मॅनच्या भूमिकेत तुम्हाला दिसतोय या मैदानावर. आणि सोबत सर सुद्धा आहेत आजच्या दिवसामध्ये. खरोखर वाखाण्याजोगत सामने आजच्या या रात्री होणार. शौर्य खासकर गेले 3 दिवस आमच्यासोबत एक चांगलं काम करतोय. आमचा जवळचा मित्र आणि ग्राउंड स्टाफ सुद्धा तो एक योग्यच काम करतोय. शौर्य तुझं पुन्हा हार्दिक स्वागत मंडळातर्फे. नमस्कार. राहिल रोहित ओपनिंग जोड़ी में और देखिए कितनी जल्दी है इनको बेलन जल्दी कितनी वो खुद आने से पहले आ रहे क्योंकि ये रन बनाने का उनका जो विश्वास है ना वो मैदान पर दिख रहा है. मैदान पर जबरदस्त कहानी है. टोटल स्कोर बोर्ड पर तब्दीली है 62 टू विन मैदान पर 61. धन्यवाद निखिल. निखिल आपके चेहरे की मुस्कुराहट सब कुछ बयां कर गई मैदान में. हमारे साथ जो कि सिंदूर का एक और एक जो कि समालोचक जो कि जय भोसले मौजूद रहेंगे. जय सर, स्वागत है इस वक्त इस तीसरी रात में आपका. नाइट के मुकाबले दुधैया धूप इसलिए कहूंगा क्योंकि आज बत्तियां बिल्कुल जल रही है और थोड़ी सी ओस मतलब जिसे शौर्य हिंदी में शबनम कहा जाता है. वो शबनम फिलहाल वो शबनम कोई लड़की का नाम नहीं. शौर्य ये शबनम जो गिर रही है ओस गिर रही है. ये ओस गिर रही है. समीर साथ हमारे साथ जुड़ेंगे. 61 टोटल दाएं और बाएं की जोड़ी मैदान पर और शुरुआत रोहित और दूसरा जो कि राहिल ये जोड़ी मैदान पर. आज गोपाल ने भरपेट गेंदबाजी की ग्राउंड स्टाफ में और पूरी लाइनमैन की भूमिका में गोपाल सबसे अव्वल है और आज अव्वल दर्जे का गोपाल आज गेंदबाजी के लिए मौका दिया गया और ओके पर हम रेडी है. गोपाल ने बिल्कुल मेंटॉस और फुल टॉस गेंदें डाली जहां पर रन बने. ये होता है गोपाल. पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर. स्वागत है आपका इस वाइड के साथ मैदान में. पहली गेंद के साथ इशारा मैदान पर वाइड का. 61 का पीछा. 1 रन, कोई नुकसान नहीं, कोई गेंद नहीं और फिलहाल वापस मोर्चे पर राइट हैंड और विकेट से. कमाल का मुकाबला. चाहने वाले अभी भी थोड़े से कम है लेकिन रात लगभग 10 बजे से बात यहां पर कुंभ मेला लगता है. और फिर से लेग स्टंप के बाहर. ये देखिए भाई इस बात का कि राहिल है स्ट्राइक पर, रोहित है स्ट्राइक पर और राहिल नॉन स्ट्राइक पर. ये जोड़ी है मैदान पर. भारतीय टीम में रोहित शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करते जय भोसले. इसमें फर्क है ना. ये लेफ्ट हैंडर ये वो राइट हैंडर है लेकिन दोनों ही हिटमैन है. ओह ताकत भरा शॉट ऑन सेट पर डीप में. राहिल अब आएंगे स्ट्राइक पर. 1 रन निकलता हुआ. 1 रन के साथ रन करती मैदान में पहुंची जबकि 3 पर मतलब 1 गेंद और 300 का स्ट्राइक रेट लगभग इस टीम का. मतलब एक ही गेंद पर 3 रन बने. राहिल अगर खड़े रहते एक और तो लगभग उनका स्ट्राइक रेट 400 का. लेकिन रात 9 के बाद यहाँ पर होटल से रहते. आज टीम खेल रही है इसलिए होटल बंद है. भाई देखिए मतलब कितनी भीड़ है इस चाहने वालों की. आज बिल्कुल होटल बंद. इसके बाद उनकी टीम खेल रही. ओहो टाइमिंग बेमिसाल. लगभग सीमा रेखा से बाहर गेंद. ये खिलाड़ी ने क्या किया. सीमा रेखा से बाहर हमने गेंद को डाला लेकिन छक्का है भाई. राहिल ऑन फायर मैदान पर. जय भोसले तो कुछ और कहते. बाउंड्री लाइन के 2 गज जब पीछे जा चुके हैं खिलाड़ी उसके बाद शायद वो छक्का निकला. जैसे नंबर 1 था वहां पर रोहन. एक जबरदस्त कहानी. राहिल पूरे फुल फॉर्म में है 2022 में. ओहो मिस है. राहिल 2022 30+ की वो पार्टी उस रात के बाद क्या वो फॉर्म में आ गए. पार्टी किस जगह पर हुई मुझे नहीं पता लेकिन चाहने वाले कहते हैं कि राहिल उस दिन से बहुत अच्छे टच में है और उसके कारण देखा 2 गेंदों पर लगभग 300 का स्ट्राइक रेट. 300 7 रन बना चुके 2 गेंदों पर. 61 रनों का सवाल उस जवाब मैदान पर देते हुए
बल्ले पर लगी है भाई, बत्तियां जली है, क्लीन बोल्ड मैदान पर, रोहित आउट मैदान पर, एक दो गेंदे एक रन बनाकर और टीम का टोटल स्कोर जबकि अब मात्र 10 पर पहुंचा। यश जो कि हमारे करीब जो कि शौर्य का बड़ा भाई है, यश को सभी भाई बुलाते, जर्सी नंबर 72 और इनका फेवरेट शॉट हेलीकॉप्टर, जो रात में दिखाई नहीं देंगे आपको, सिर्फ शॉट दिखाई देंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर मतलब आप सोचेंगे कि भाई वो बत्तियां जलेंगे, वो नहीं, बत्तियां हमारे पास स्टंप के लिए जलती है। और देखिए हेलीकॉप्टर मार सकते हैं, उनके पास काबिलियत है कभी भी। यश मैदान पर, राहिल और यश जोड़ी मैदान में, हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट इसे कहा जाता है पूरे इस एरिया में। इस खिलाड़ी के नाम का भाई रहता है हमेशा। और डिफेंस देखिए भाई, भारतीय टीम में जिस तरह से टेस्ट में डिफेंस किया था ना वो अंदर था, लेकिन राहुल द्रविड़ के साथ सिर्फ गैप में अब सिंगल के लिए जा रहे हैं, एक रन के साथ 11 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। अब मैदान पर हिटमैन राहिल मैदान में, 350 का स्ट्राइक रेट राहिल का है, 2 गेंदे 7 रन। सोचिए कि अगर ये और कुछ पल रहा ना तो 400 के ऊपर जा सकता है इनका स्ट्राइक रेट। इस बार उड़ाया 6 रन के लिए, 17 पर टीम का टोटल पहुंच चुका है। और राहिल देखिए भाई, बल्ले को देखे चुमा ले रहे हैं और बता रहे हैं सामने से, ये भरोसा है कि ये मैच जब तक वो खड़े रहेंगे ना 400 के ऊपर स्ट्राइक रेट बढ़ता जाएगा और मैच तब तक समाप्त होगा। मतलब ये बहुत तेज खेलते हैं। और टीम का पहला ओवर चल रहा है और स्कोर बोर्ड में तब्दीली, 17 रन जोड़े गए पहले ओवर में। गेंदबाजी में तब्दीली, भूपेंद्र मैदान पर, शॉर्ट पिच गेंद, ये हेलीकॉप्टर मारना ज्यादा पसंद करते हैं, ये शॉर्ट पिच गेंदे सभी नहीं मारते, शॉर्ट पिच गेंदे राहिल मारते, इसलिए हेलीकॉप्टर अगर गेंद होती ना तो यही गेंद आपको बिल्कुल माइक्रोफोन के ऊपर से भाई दिखती नहीं, मिलती नहीं गेंद, इतना बहुत जोरदार शक्तिशाली खिलाड़ी है, पूरे एरिया में इनको हाई कहते हैं सभी। अब वो कुछ कर रहा है, ये मत पूछिए क्या कर रहा है, देखिए फिर से उड़ाया गेंद को, ओ मिड विकेट के ऊपर से और एक लंबा छक्का मैदान पर। और इसलिए होटल बंद किया गया क्योंकि राहिल की बैटिंग देखने के लिए उनके चाहने वाले निकल चुके हैं, इसलिए आज ये भोसले चाय नहीं मिलेगी, होटल बंद है। इसका कारण कि राहिल आज बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से हवा में शॉट, मिस टाइम हो गया गेंद, खिलाड़ी तलक पहुंचेगी नहीं, 1 रन मिलेगा, कॉल अच्छा, विकेट की बीच की दौड़ अच्छी, गलत मौके पर गलत निर्णय, लेकिन भाई बत्तियां जली या नहीं पता नहीं, आउट हो गई। कुछ पता नहीं चला क्या वहां पर हुआ, लगता है कि बेस गिर गई है, बेस गिरने के बाद अब लाइट जली है, लाइट थोड़ी पर जली नहीं थी और ये आउट हो गया। राहिल आवश्यकता नहीं थी इस रन की क्योंकि रन गति बहुत तेज बढ़ रही थी, लगभग 25 रन हो चुके थे, पहले 2 ओवर में अगर 30 बनते तो 12 गेंदों पर आप 30 रन बना सकते, आपके पास वो काबिलियत थी। लेकिन गोपाल विस्फोटक खिलाड़ी, गोपाल के बारे में क्या कहूं, वजनदार खिलाड़ी, अब कहूंगा सिद्धू पाजी की तरह जानदार खिलाड़ी और शानदार खिलाड़ी, इनके पास दमखम है, सिर्फ शक्ति नहीं भाई, ये बहुत पावरफुल है। ये एक बार इनके पाले में आ जाए ना तो 162 मीटर जाएगी गेंद, मतलब वो गेंद मिलने वाले हैं आपको। देखिए मिस टाइम हो गई, मिस टाइम, अगर निशाना नहीं लगा भाई बच गया। 26 ये टोटल सामने से, 61 टू विन है और राहिल थोड़ी सी जल्दबाजी करता हूं मैदान में। देखिए पार्थ को देखिए, सपोर्टर है ये, ओ हवा में है, सीधे खिलाड़ी के हाथ में और ये आउट, भाई आउट। मनीष गोपाल, जिनको लोग प्यार से गोपू कहते हैं, ये उनका पैटर्न है, 18 नंबर की शायद जर्सी है ये। विराट कोहली जो पहनते हैं ना वो जर्सी नंबर ही 18 है, इसलिए बताया कि इनमें विराट जैसा विराट खेलने की ताकत रहती है हमेशा, सिर्फ मैदान पर उन्हें मौका दिया नहीं गया, लेकिन आज मौका मिला और दर्शक देखिए काफी ताकत में, होटल बंद, दुकानें सब बने यहां पर। ओ अच्छी बॉलिंग मैदान पर, रन नहीं मिलेंगे। 2 ओवर समाप्त हो चुके, 26 मैदान पर।
रन रेट ठीक ठाक है। अब अंतिम 12 गेंदों पर आपको 6 छक्के मारने हैं। 26 आणि 4 30 30 आणि 30 60 35 35 रन। रोहन जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेगा, सामने गोपाल रहेगा। गोपाल जो कि एक डेंजर मैन मैदान पर, जिस खिलाड़ी के पास दम कम है। ओ शॉर्ट गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन काम कर गया। गोपाल फंस गए वहां पर और गोपाल आउट मैदान में। बैट्समैन वरुण मैदान पर। वरुण का फुल फॉर्म जानते, वरुण का मीनिंग क्या है जानते सभी लोग। लेग स्टंप बाहर, वाइट बॉल, वाइट के साथ दो पैरों में जो गैप रहती है ना, उस गैप से निकली विकेट कीपर के। ये 2 रन मिलेंगे वाइट के साथ, एक 22 के साथ, और टीम पहुंची 28 पर। 33 रन अंतिम 11 गेंदों पर। अगर वो छक्का मारते गोपाल तो ये भी छक्का था मैदान पर गोपाल के लिए। वरुण एक विस्फोटक खिलाड़ी है, सामने से दूर मारते। ओ शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट पुल का शॉट ऑन साइड पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है। आराम से गेंद को उठाया जाएगा, 1 रन मिलता हुआ। 10 गेंदों का खेल और 32 रन जीत से पीछे मैदान में। मनीष नॉन स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर रहेगा ये नया खिलाड़ी वरुण मैदान पर। गोपाल की कमी अब आ रही है, और खासकर राहिल की। फुल टॉस गेंद, शायद ये भी छक्का था मैदान पर। 3 गेंदे इस ओवर में ऐसे डालना जहां पर आप 3 छक्के मार सकते थे, इसलिए मैं कहता राहित ने जल्दबाजी के आउट हो गए। गोपाल जल्दबाजी कर गए, शॉर्ट पिच गेंद पर जहां पर पुल मारना था वहां पर आउट हो गए। पार्थ टीम में नहीं खेल रहे, इसका अब दुख है सभी को, क्योंकि वो एंजॉय है। पार्थ अगर इस जगह पर समीर सर होते ना, तो लगभग ये 3 छक्के पार्थ आसान से मार लेते। आज इंजॉयड है, लगभग डॉक्टर ने अभी भी फिट है ऐसा कहा नहीं। शौर्य माफ कीजिए, पार्थ नहीं, शौर्य इंजॉयड है, इसलिए शायद शौर्य टीम में खेल नहीं रहे। अन्यथा अगर शौर्य सर इस जगह पर होते ना, तो शौर्य कम से कम 3 छक्के मार सकते थे। आज डॉक्टर ने परमिशन नहीं दी फिलहाल खेलने के लिए, कहा है कि लगभग 1 महीना और लगेगा आपको ठीक होने के। शौर्य बेस्ट ऑफ लक अगले मैच के, अगले साल के लिए भी, क्योंकि ये प्रतियोगिता हर साल में एक ही बार होती है, इसलिए क्या हमने। लेकिन चलिए वापस खेल मैदान पर। ओ कट किया गेंद को पॉइंट पर, कवर पॉइंट का खिलाड़ी दौड़कर निकला, आराम से 1 रन निकल पा, और 1 रन के साथ रनगति मैदान में पहुंची। टीम का टोटल स्कोर 32, 29 रन की आवश्यकता मैदान पर। ओवर समाप्त। गोपाल के बाद शौर्य आ रहा था, लेकिन शौर्य इंजर्ड है समीर सर, इसलिए शौर्य को टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। काफी लोग पूछ रहे थे शौर्य टीम में क्यों नहीं है, क्यों का जवाब हम नहीं दे सकते, लेकिन जब हमें पता चला शौर्य क्यों नहीं है, इसका सवाल का जवाब हमने आपको दे दिया, क्यों नहीं है वो टीम में। शौर्य के घर से भी ये मैच लाइव देख रहे उनके मम्मी डैडी। आज शौर्य अगर खेलता तो बात अलग रहती, लेकिन चलिए अंतिम 6 गेंदें 29 रन जीत से पीछे। 12 मैन की भूमिका में फिलहाल शौर्य। सावियो ने लाजवाब बैटिंग की, दूर दूर छक्के मारे। ओह पहले ग्राउंड के बाहर कर दी, वाइड बॉल का इशारा। ओस इतनी अभी तक नहीं गिरी है सावियो, जहां से हाथ में छूट जाए, लेकिन आज तो अच्छी वाली। और ये दूसरा वाइड, लगातार 2 गेंदे वाइड। अब जीत से पीछे 28 रन की आवश्यकता। तीसरा, और ये पीछा क्यों कर रहे गेंद का, ये वाइड, इन्होंने पीछा क्यों किया गेंद का। इसके बाद का अजय ना, घुमटेश्वर मडगांव और प्रजा 11 दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। घुमटेश्वर मडगांव और प्रजा 11। फिर से शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, यह भी मौका था बड़े शॉट के लिए। शौर्य बहुत नाराज लग रहा है मैच देखते हुए, क्योंकि 4 गेंदे शॉर्ट गेंदे, 2 गेंदे फुल टॉस, एक तो वाइड थी जहां पर आपको कहीं भी मार सकते थे। ये भी शॉट पे, ये गेंद को, और इस कैच को लेने का प्रयास तो अच्छा था, लेकिन कैच छोड़ा गया। 1 रन मिलेगा। 36 मैदान पर।
ओ शॉट गेंद फिर से पुल किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। एक ही रन मिलेगा, एक रन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरुष भी टीम में है, आरुष को भी मौका मिल सकता है। व्हाइट बॉल का इशारा, आरुष तैयार है, बिल्कुल तैयार। आरुष बल्ला लेकर सामने तैयार है, सिर्फ आरुष को उतारना पड़ेगा आपको। आरुष जो वार्म अप करे, आरुष पता है कि इसके बाद उनका ही नंबर आएगा आरुष का। एक ओवर वाइट, शायद ये मैच लगभग लग रहा है कि 4 ओवर का नहीं, ये लगभग 5-6 ओवर का मैच हो चुका है। आरुष तैयार है बल्लेबाजी के लिए। ओह टाइमिंग है, लेकिन आरुष को एक मौका दे सकते हैं आप बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक के बल्लेबाज 43 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान में। गेंदे बची अभी तक इस ओवर में नहीं। आरुष मौका नहीं मिलेगा, अगले साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। फिर से अच्छा खेल, लेकिन समाप्त हुआ मैच। मैन ऑफ द मैच का दावेदार गोपू, जिन्होंने 29 रनों की एक लाजवाब बैटिंग की और 29 रनों में कितने छक्के, लगभग लग तो रहा है कि 4 छक्के मारे गए, 12 गेंदे और 29 रन। मैन